Thank you, UIP, especially Director UIP, Dr. Alok Mukherjee, sir, for inviting me to deliver my views on a specific orientation lecture for the pharmacy graduates. So as per, and also thanks to your all organizing committee, your institutions, your management for invitation. So kindly provide me the, allow me for the share screen. Please. Arvind, yes, sir, sir, you are allowed. Yes, sir, you can share a screen right now. Hello. Sir, unmute your audio. Sir, your audio is muted. Hello. Yes, sir, you are audible now. It's visible? Yes, sir, it is visible. You can continue. Slides are visible? Please confirm slides are visible and voice are audible? Yes, sir, Arvind? yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Arvind? Okay. So, as per the sir suggestion, audience B.Pharm graduates हैं या B.Pharm graduate, M.Pharm भी हैं. B.Pharm, Okay. M.Pharm, sir. आपके institutions के हैं सारे? जी, sir. Okay. So, thank you, Arvind for information. Thank you for the invitation, especially for Dr. Alok Mukherjee, sir, Director UIP. He is not only my senior, he is my mentor also. He is my best senior, always, forever, for life. So he always a good senior, good mentor, and maybe he is a good friend. So thank you, sir, again for invitation. I'm audible? Yes, sir, you are audible. Okay. So my topic is for today's talk is provenance of pharmacocybernetics. Especially, we focused on today artificial intelligence, an effective tool for drug discovery and drug development. Topics to be discussed in this lecture: a brief introduction of my topic, artificial intelligence, including machine learning, big data, IoTs, Internet of Things, and conclusion. Today's a world of cyber science or computer science. So, and as a term is pharmaco-cybernetics, means pharmaco means a drug and cybernetics means a computer world. So it is an interdisciplinary field that integrate the domains of pharmaceutical, computer science to design, develop, and evaluate technology innovations which improve the drug development and patient care management.
Field of computer science such as artificial intelligence, machine learning, big data, IoTs, AR, augmented reality, VR, virtual reality, the traditional process in the pharmaceutical sciences. I want to, this is a era of Industry 4. Industry 4 means the revolution of Industrial 4, which जिसमें 100% इंडस्ट्री डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम. स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम जिसमें कि आपको इंडस्ट्रियल सिस्टम में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कस्टमाइज रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, smart supply chain, etc. you have to develop. Therefore, Industry 4 is known as a smart system for industry revolution, because here the flexible products are required. Entire process for during a production, real-time informations are required. So all these things are very essential to, you have to know the all smart system to drug development and industrial process. So what is artificial intelligence? This term is coined by John McCarthy in 1955, University of Dartmouth during a conference in 1955. So artificial intelligence is a wide-ranging branch of computer science, building a smart machine capable of performing tasks that typically require as human intelligence. So very simple in term, in absence of human, a machine work like a human intelligence, that is AI. AI is an interdisciplinary science with multiple approaches, but advancement of learning, machine learning, deep learning are creating a paradigm shift in virtual everyday of the technical industry or technological industry. As I'm using the term interdisciplinary, interdisciplinary means always there is a, for the achieve a target, you want to win or any match, there is a need a team. पूरी टीम में हर आदमी का एक अपना रोल है, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी. यदि आप क्रिकेट मैच लेते हैं तो बॉलर अपना काम करता है, बैट्समैन अपना काम करता है, विकेट कीपर अपना काम करता है, लेकिन ऑलराउंडर भी कुछ होने चाहिए. सो कोई प्रॉब्लम है? हेलो, कोई प्रॉब्लम है अरविंद जी? हेलो हेलो. No, sir, no problem. You can continue, sir. So interdisciplinary means you have to Sir, please unmute your device. Sir, please unmute your device. Hello. Sir, please unmute your device. नहीं होता है ना, सर को खुद से करना होगा.
Hello. Hello. Sir, please unmute your device. Yes, sir. Yes, sir. Hello. You are now unmuted. Okay, sir. Please continue. Okay. So, why do we want or need AI? See, there is a one simple game. आप ये एक छोटा सा गेम जैसे टिक टैक टू गेम कहते हैं, इसमें सिर्फ 9 ब्लॉक्स हैं, 2 प्लेयर खेल सकते हैं, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज अगर आप विन करने की या पॉसिबिलिटीज आप चेक करें तो टोटल पॉसिबल टिक game is 2,55,168. This is the data. It's a simple game where only the 9 blocks. आपको कोई उसकी पॉसिबिलिटी प्रिडिक्ट करनी है तो उसके मिनिमम डेटा 2,55,168 होंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल, यदि आप चेस बोर्ड में 4 स्टेप 2 प्लेयर्स चलते हैं, 4 स्टेप मूव करते हैं, देन यू विल सी द डेटा फॉर द पॉसिबिलिटी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सो 2.88 10 to the power 10 दिस बिकम डेटा लाइक दैट। आप ऐसे और स्टेप बढ़ेंगे तो डेटा शायद रीड करने में भी मुश्किल होगी। सो हैंडलिंग ऑफ सच ह्यूज डेटा इन अ पर्टिकुलर रिजल्ट, दैट्स टाइम in instead of human brain, some machine intelligence are required. That machine intelligence is known as artificial intelligence. One more live example. This is a maze puzzle. On this basis of maze puzzle, you are using routinely your Google map. The Google search your destination. From your destination, your location, they look, the whole world is like a maze, but they give the result in a fraction of a time, and you get your destination shortest way and shortest time. So this is based on 100% on intelligence of a machine. So these are the some example of artificial intelligence. So some example of AI is in your practical life. One, smart assistants like Siri in your iPhones, or you can, there are the separate device are available, Siri from the Mac, from the Apples, or Amazon Alexa are available where you can chat according to you, the answer machine can give. You want to chat with the machine, this is only possible the intelligence of machine. So this is a nice example of smart assistants. आपने घरों में डिवाइस आजकल गूगल डिवाइस या गूगल होम, अमेज़न का एलेक्सा का बहुत सारा ऐड आता है जिसमें आप अपनी बात कर सकते हैं एक मशीन से, या आप गाना सुनाइए, आप मुझे सर्च करके दीजिए और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ही समझ के वो आपका आंसर देती है. सो दिस इंटेलिजेंस इज अ नाइस एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वन मोर एग्जांपल इन योर रूटीन लाइफ, आपके ईमेल बॉक्स खोलते हैं तो उस ईमेल में से बहुत सारे मेल जो आप नहीं यूज करते हैं, जिस पैटर्न के आप मेल नहीं यूज करते हैं, मशीन ऑटोमेटिकली स्पैम में फिल्टर कर देती है. सो मशीन लर्न कर रही है आपसे कि आप क्या करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे यूज करते हैं. ऑटोमेटिकली मशीन लर्न करके, दिस इज नोन एज मशीन लर्निंग, और वो सेपरेट. दिस इज अ नाइस एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं. आप गूगल में कोई वर्ड टाइप करते हैं, आपको टाइप करना है वेबिनार एआई आप लिखना चाहते हैं, वो अपने आप एआई का ऑप्शन आपको देता है. ये ऐसे और टर्म जो रूटीन में आप यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली गूगल आपको ऐसे ऑप्शन क्रिएट करने लगता है. सो मशीन आपके रूटीन वर्ड्स को डेटा मैनेज करके आपके हेलो रूटीन वर्क को आपको देखते हुए आपके वर्ड को डेटा समझ के, डेटा कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ algorithm reach to the machine again convert to the algorithm and converted in a words form. Similarly, if you are talking with the Siri and Alexa,
जब आप बात करते हैं तो वॉइस कन्वर्ट इनटू द लेटर वर्ड्स, words convert into the algorithm reach to the machine, algorithm convert into the algorithm convert into the again in the words convert into voice. This long chain is done by only the intelligence, only the way of a smart machine. So nowadays आप बहुत सारे और एग्जाम्पल आप अमेरिका में सुना होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं. दिस nice example of AI, especially based on neural networks. Deep neural network based self-driving cars are available. Similarly, image recognition software like Google Lens, आपको पता करना है पेड़ कौन सा है, मुखर्जी सर को तो बता देगा कि इस पेड़ की कौन सी Google Lens से आप फोटो खींचिए तो बता देगा कि ये पेड़ कौन सी फैमिली का है, इसके यूज क्या है, और बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर किए जा सकते हैं. सिमिलरली यूज फॉर द these image recognition for the diagnostics and for the disease of study of biology and etc. Very nice example of IBM Watson. IBM Watson is a wonderful software used by the Pfizer for the development of drug discovery and drug research. This is a software, इस सॉफ्टवेयर ने जब फाइजर ने यूज किया in the form of to drug discovery, they selected specific RBP, RNA bind proteins, specific RNA bind proteins for the various pathogens to identification of neurodegenerative diseases. So again, AI is not a magic bullet. A progress, but it holds a lot of promise, future of healthcare and drug development. So why again in R&D of drug research and drug development, I just coined the term, आप भी कर सकते हैं. देखिए, मैं आपको, आप सारे ग्रेजुएट्स हैं, आप बहुत सारे लोग फिनिशिंग स्टेज पर हैं, कई लोग फिनिश करके पीजी कर रहे हैं, बट आप जब अपना होल फिनिशिंग स्टेज कंप्लीट करके आप बाहर जा रहे हैं मतलब अपने फाइनली वर्क के लिए आप रेडी हैं, इक्विप्ड हैं. उस इक्विपमेंट में एक ऐसी मशीन, ऐसा एजुकेशन, ऐसा स्मार्ट सिस्टम जो वर्ल्ड इस समय उससे काम कर रहा है. यदि सो दिस इज नॉट न्यू. आप सोचें जैसे हमारी फार्मेसी में हमेशा से टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहते हैं, सब कन्वेंशनल है. लिपोसोम एंड ट्रांसडर्मल पैचेस, माइक्रोस्फीयर, ये सब नोवेल है. मैं नहीं मानता ऐसा, इसलिए क्योंकि जो चीज मार्केट में आने लगे वो नोवेल कहाँ है. अब आप देखेंगे तो बहुत सारे लिपोसोमल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे नैनो पार्टिकल बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट में हैं. सो वो ट्रेडिशन है, 100 साल पुराने पहले लिपोसोम डिस्कवर्ड हुआ था, लेकिन अभी भी हम इंडिया में उसको नोवेल कह के पढ़ते हैं. सिमिलरली AI हेल्थ केयर में 1970 में पहली बार यूज हुआ. 50 साल हो रहे हैं, 50 years आर वी आर कंप्लीटिंग, बट हम उसको एक नए डायरेक्शन में देख के, नए वर्ड देख के समझना कोशिश कर रहे हैं. 1970 में हेल्थ केयर में यूज करके बहुत सारे, आज की डेट में अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखें, आई विल डिस्कस, सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, पेशेंट केयर मैनेजमेंट में, इवन अभी आप जिस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं इसमें AI ने बहुत सारा काम किया. बहुत सारे ड्रोन AI से कंट्रोल थे, बहुत से आपके चेस्ट एक्सरे इमेजेस जहां पर वो AI से मैनेज्ड स्कैनिंग मशीन्स थी जो इमीडिएट उसके रिजल्ट्स बता रही थी. सो होल वर्ल्ड इज इक्विप्ड विद द AI. इसलिए आपको या हमारे फार्मेसी ग्रेजुएट्स को या हमारे फार्मा फ्रेटर्निटी को भी डेफिनेटली दिस नॉट न्यू, आप सब जानते भी होंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये न्यू है. लेकिन ये आप ड्रग डिस्कवरी और ड्रग रिसर्च की बात करें, यदि जस्ट सिंपल क्वाइन द टर्म इन एनी सर्च इंजन, आई क्वाइन दिस टर्म AI प्लस ड्रग इन साइंस डायरेक्ट. मैंने साइंस डायरेक्ट में 15 दिन पहले ये वर्ड क्वाइन किया और आई फाउंड द ह्यूज रिजल्ट कि you can
अनबिलीवेबल रिजल्ट्स की लगभग 345 इंसाइक्लोपीडियाज थे उसमें, 7426 बुक चैप्टर्स थे एआई प्लस ड्रग डेवलपमेंट पर, और 7000 प्लस रिव्यू आर्टिकल थे। और आप देख रहे हैं रिसर्च आर मोर देन 76,000 and research in early 90s started on the drug research, on the AI based research. So this is not new and this is a very fascinating, बहुत ये एक डायरेक्शन है एक, so that's whole world is looking towards the AI, that's why pharmacy fellows को भी pharma, और ये मैक्सिमम रिसर्च जो आप देख रहे हैं this is done by the interdisciplinary scientist। मैं एक बात कह रहा था उस समय कि व्हाट इज ड्यू टू सम डिस्टरबेंस नहीं बहुत है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है एआई। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस से मेरा पर्पस था बार बार कहने का, आपको एल्गोरिथम सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत जरूरत नहीं है कि आप आज से ही पाइथन शुरू कर दें सीखना, आज से आप वेब डिजाइनिंग करना सीख जाए, ये जरूरी नहीं है। आज एआई बहुत अच्छा काम कर सकता था और आप उसके ड्रॉबैक भी मैं बताता हूं। एआई फेल हो रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, फार्मा इंडस्ट्री में, बिकॉज उसका डेटा ऑथेंटिक नहीं है। डेटा ऑथेंटिक नहीं है मतलब जिस डेटा लोगों ने क्रिएट किया है वो डेटा बहुत बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। सो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस मींस आपको अपना काम बहुत ही अच्छे से करना है। आपका काम जो है मॉलिक्यूल को पढ़ना है, मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है, मॉलिक्यूल के बारे में आपको बेस्ट नॉलेज डेटा क्रिएट करना है। यदि आपका डेटा 100% प्योर है, रिलायबल है, then you can hire to anyone, you can join the hand with the some such fellow जिसको ये टेक्नोलॉजी आती है, उस टेक्नोलॉजी के साथ आप हैंड्स मिलाइए और अपनी बात बताइए और आप क्या रिजल्ट्स चाहते हैं वो उनसे बात करिए और ये इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन क्रिएट करिए। सो ऑल द कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज, एक नहीं हजारों कंपनीज अब इस समय लिस्ट में है, स्टार्टिंग फ्रॉम रोज, एलर्जिन, फाइजर, ये सब ने बहुत सारे स्टार्टअप के साथ, बहुत सारी एआई कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किया और कोलैबोरेशन के साथ एक नए प्रोडक्ट देने को तैयार हैं। So this is a term interdisciplinary. So मैं इसलिए कहता हूं कि interdisciplinary साइंस है और interdisciplinary साइंस में हर साइंस वाले को अपना नॉलेज, अपना ऑथेंटिक नॉलेज क्रिएट करना है। So application of in pharmaceutical sector, AI brings with it the promise of using sophisticated machine learning algorithms for disease and drug candidates with the speed and accuracy that would be difficult for the human researcher, potentially saving pharmaceutical biotech companies in billions in drug development. एक ड्रग डेवलपमेंट में मिनिमम 5 years लगता है, मिनिमम 5 years, नॉट लेस देन 5 years, से ज्यादा हो सकते हैं। और आज तक जो आप सर्वे कर लीजिए 90s से लेकर आज तक, यदि आपने 10 NCE न्यू केमिकल एंटिटीज के लिए आपने फंडिंग किया है, आपने टाइम दिया है, उसमें एक मुश्किल से सक्सेसफुल स्टोरी लिखती है। सो डिफिकल्ट टू गिव फाइनल रिजल्ट्स। मैक्सिमम हमारी रिसर्च क्लिनिकल फेज 2 और क्लिनिकल फेज 3 में फेल हो जाती है। सो देयर इज अ नीड ऑफ अ मशीन, नंबर 1 टू रिड्यूस अ टाइम 5 to 6 years से वो 1 year एग्जाम्पल मैं भी आपको दूंगा कि 1 साल में भी आप एक नई ड्रग डेवलप कर सकते हैं और एआई बेस्ड ड्रग डेवलप हुई है जो 12 महीने में की गई है। जहां मोर देन 3 billion 4 billion खर्च होता था ड्रग डेवलपमेंट में, वो रिड्यूस पर बिलियन आ गया। सो कॉस्ट, टाइम एंड इफिकेसी सब कुछ मशीन के थ्रू बढ़ाई जा सकती है, बढ़ रही है। सो दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि डिजिटल फॉर्म को, इनोवेशंस को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। सो ड्रग डिस्कवरी कैन बिकम एक्सट्रीमली इफेक्टिव
through the use of AI, especially in the current trend and especially critical in rapid drug discovery process with the pharmaceutical companies, also focusing on specific AI applications. Pfizer is using the IBM Watson for identification of so many AI-based genomic or biotechnological drugs and using this platform. And AI can be used for processing an estimated 3 million lab reports and data at a time. मीन्स वट एवर आपको क्या लगता है आप एक दिन में कितने पेपर पढ़ सकते हैं? आपने साइंस डायरेक्ट खोला, आप अपने सब्जेक्ट का रिव्यू करना चाहते हैं, आपको एक रिव्यू लिटरेचर क्रिएट करना और एक फाइंडिंग क्रिएट करनी है और आपको एक समरी तैयार करनी, ये मेरे संबंधित पेपर हैं, इनसे ये फाइंडिंग है और इसका मुझे ये कंक्लूजन चाहिए। लेकिन वही मशीन पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कोरोना वायरस हुआ, क्या रीजन था, एट ए टाइम आप इस समय देखिए 2020 के कोरोना वायरस पे एआई के पेपर अकेले 20,000 से ज्यादा पेपर हैं जो एक साथ असेंबल करके डेटा दे रहा है। सो मशीन कैन डन इट इन 30 मिलियन लैब रिपोर्ट्स एंड डेटा कैन असेंबल इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। इसलिए मशीन सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज गुड और हमको उसके साथ चलना है, बट ऑलवेज ह्यूमन की जरूरत रहती है, रियल एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत होगी, वो भी विद द नॉलेज। सो मेजर एप्लीकेशन अगर मैं बात करूं, वन, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी ऑफ डिसीज। पर्टिकुलर किसी डिसीज की बायोलॉजी यदि आप आज भी जानना चाहते हैं तो वो सब हाइपोथेटिकल है, एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल। आप जब भी आज सेल स्ट्रक्चर भी हाइपोथेटिकल है, आप बिलीव नहीं करेंगे, आई रेड सो मैनी लिटरेचर, अभी लेटेस्ट एआई बेस्ड कैंसर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक यूज की, ल्यूकोसाइट्स काउंट बढ़ता है, ल्यूकोसाइट्स की टर्मिनल प्रोटीन्स इतनी है, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड रिसेप्टर्स, अनकाउंटेड रिसेप्टर्स एंड प्रोटीन्स को सिमुलेट करके एंड सिमुलेशन के थ्रू इमीडिएटली द डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज किया जाता है एंड डिसीज कंडीशन को बता सकता है, डिसीज की बायोलॉजी बता सकता है। सो दीज मेजर टूल जहां पर हम आज भी आपको एक स्कैन कराना है, इमेज करानी है, एक्सरे कराना है, वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी से आपको डेटा देते हैं, उस डेटा को आपको रिलाई करना है। तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारी डिसीज हैं जहां डेटा ह्यूज चाहिए, जितने ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर हैं, they are required more and more data. So disease biology identification, diagnostic identification, and third, novel molecule identification, especially gene therapy identification is a major work in AI. More than 10 startups are doing the work in own distributed area, some of them doing for the study of biology of disease, some of them working on genome and gene sequencing, and some of them working for the identification and lead identification of molecule are based on the small and larger molecule of a compound. So these are the real time application of pharmaceutical, application of AI, especially if you go through for the बी फार्म के बच्चे हैं यहाँ पर, यदि उन्होंने और एम फार्म के हैं वो देख ही रहे हैं, पूरी जो प्रोसेस है टीचर्स देख रहे हैं, कोई इशू नहीं। मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि हमारी जो R&D है, आपका जो होल वर्क है बी फार्म करने के बाद, यदि आप R&D सेक्टर में जाते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये छोटे से छोटा सा पाथ है। दिस इज अ पाथ ऑफ R&D, दिस इज अ पार्ट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। पहले आपको किसी भी चीज की, जिस चीज का आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ड्रग कैंडिडेट हो सकता है, ड्रग कैंडिडेट को पहले स्क्रीनिंग करनी है, उसका फिनोटाइपिक स्क्रीनिंग करनी है, जनरल आइडेंटिफिकेशन। आपको कोई पेड़ सिलेक्ट करने तो 100 पेड़ लेके उनकी जनरल फिनोटाइपिक स्क्रीनिंग करनी है, वो आप नंबर 1 है। अब उनमें से कोई जो लीड मिलती है, फिर आप उस लीड में से लीड आइडेंटिफिकेशन करना है। जब लीड आइडेंटिफाई हो जाती है, फिर हमको लीड ऑप्टिमाइज करना है, फिर एनिमल्स पे आपको स्टडी करना है, फिर आपको ह्यूमंस पे स्टडी करना है, देन फाइनली यू विल गेट द फाइनल मेडिसिन। और ये करने में कम से कम मिनिमम 5 to 6 ईयर तो लगने हैं, इससे ज्यादा लग जाए तो होट नहीं है। यदि ये फेल होता है
तो बहुत ही मुश्किल काम है और फेल होता है जनरली जो पीएचडी करके आए हैं और वो सोचे कि 4 साल लगा दिए और उन्होंने लास्ट आरडीसी में गए, उनसे कह दिया भाई अभी तो तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, प्लीज रिपीट द वर्क। तब उसकी लाइफ समझिए कि वो क्या करने वाला है बेचारा। ऐसे ही डायरेक्ट कैंडिडेट में जहां बिलियंस खर्च किए गए हों और फाइनली लीड में आप फेल हो जाएं कि आप फिर से इसको करिए, तो ना पैसा है, कंपनी डूब रही है, आपको निकाल अलग दिया जाएगा। सो देन मशीन इज रिक्वायर्ड। सो आई हैव हियर shown the some so here is a one heat map and color coding I have done for the maximum use of AI. Check the color coding, आप कलर देखिए जिसमें ज्यादा जहां AI है वैसा ग्राफ यहाँ बनाया है। आपके राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्मेटिव है, मैक्सिमम जिसमें AI लग रहा है, फिर वेरी हाई है, फिर हाई है, फिर एवरेज है। कलर कोडिंग से एक ग्राफ क्रिएट किया है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन और फिनोटाइपिक स्क्रीनिंग, इसमें मैक्सिमम डेटा होता है जहां आदमी को समझना मुश्किल है। आप सिंपल सा हेमेटोलॉजी कराइए 10 ड्रग का, फिर आइडेंटिफाई करिए उस हेमेटोलॉजी के डेटा, आपको समझना मुश्किल होगा। लेकिन अगर बायोलॉजिकल टारगेट्स पे जाते हैं जो QSAR पे काम करते हैं, ड्रग डेवलपमेंट में इन सिलिको मेथड काम करते हैं, वहां जब आप डेटा सर्च करते हैं देन यू आर गेटिंग द bond angle, bond length, receptor binding, huge number of receptors available, then you are getting the data in big size in GB, terabytes, and in this way. Then separation is very difficult. तब आपको मशीन की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। एंड देन ये कहाँ यूज होंगे, किस रिसेप्टर पे काम करेंगे, क्या हमारा टारगेट होगा, देन टारगेट आइडेंटिफिकेशन। बायोलॉजिकली इट्स अ ब्यूटीफुल if you are using the machine, especially अभी भी हम यूज करते हैं। आपको बहुत सारी, आपको कौन सी स्क्रीनिंग में जाना है तो अभी भी मशीन बेस्ड ही करते हैं। कोई ह्यूमन माइंड नहीं तय कर पाता कि किस रिसेप्टर से बाइंड करेगी, किस रिसेप्टर में रिएक्शन कर रही है। अभी भी हम उसका टैम्प कराते हैं या फर्दर कोई और चीज कराते हैं जिससे हमको पता चल सके कि अंदर टारगेट में कहाँ फिट हो रही है, नहीं फिट हो रही है। फॉर टारगेट आइडेंटिफिकेशन में दो काम, देयर आर लिटिल बिट बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर ओमिक्स भी यूज किया जाता है। डेटा माइनिंग में बहुत सारी AI यूज की जा सकती है। सो एंड देन टारगेट वैलिडेशन। टारगेट वैलिडेशन में आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डीप लर्निंग बेस्ड आ गए हैं जो टारगेट वैलिडेशन पे काम करते हैं। सो टारगेट आइडेंटिफिकेशन, phenotypic screening, and third is a lead identification is a major AI you can utilize. And lead identification is the toughest work in anywhere. आपको यदि मैं कोग्नोसी मुखर्जी सर याद आ जाते हैं हर बार मुझे, यदि कोग्नोसी फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट निकालने हैं आपको, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट के आपने 100 सैंपल ले लिए, 100 सैंपल का मास कराया और 100 सैंपल में से कौन सा लीड मॉलिक्यूल है, उस मास फ्रैक्शन से आपको करने में बहुत साल लग जाएंगे। इसलिए आज भी हर्बल्स और आयुर्वेदा की एग्जैक्टली स्टैंडर्डाइजेशन टफ है। सो इफ यू वांट टू द लीड आइडेंटिफिकेशन, तो बहुत सारे AI बेस्ड और मॉलिकुलर मास को रीड करने का, मास से सेपरेशन करने का, फ्रेगमेंटेशन करने का, मॉलिक्यूल आइडेंटिफिकेशन, लीड आइडेंटिफिकेशन यूटिलाइज सो मेनी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। आई विल टोल्ड यू हाउ कौन सा सॉफ्टवेयर लीड आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं विच इज AI बेस्ड। बट हियर सिमिलरली स्ट्रक्चर कैसा है, लिगेंड कौन सा यूज होगा, इसमें भी AI, बट इट्स अ लिटिल बिट low as compared with the lead identification. So here is a high AI you can utilize, but not maximum transformative. Similarly, lead optimization and preclinical and clinical data. Preclinical and clinical data is totally based on the biology and totally based on the human beings. So there is an average AI can be utilized. But suppose nowadays in pandemic, you want to the use hydroxychloroquine in coronavirus, then अभी कोई ड्रग ट्राई कर रहे हैं ह्यूमंस पे डायरेक्टली, यदि हम AI यूज करते
तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का रीपर्पजिंग फ्रैक्शन ऑफ 1 और 2 आवर्स में दिया जा सकता था। ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं, ये होल प्रोसेस रीपर्पजिंग का आप काम करेंगे कि मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर है, एंटी इंफ्लामेटरी भी काम कर रही है, एंटी इंफ्लामेटरी के साथ क्लोरोक्विन देते मेथोट्रेक्सेट के साथ तो हो सकता कोरोना वायरस जल्दी ठीक हो जाता। सो रीपर्पजिंग द होल प्रोसेस यू कैन डू in a very short span of a time if you are using the AI based machines. So this is the whole application. I think मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये एक पाथ है, इस पाथ में कहाँ कहाँ AI आप यूज कर रहे हैं और उम्मीद है कि बात आप तक पहुंची होगी। मेजर माइलस्टोन्स जो AI 12 जून 2007 में फर्स्ट एल्गोरिथम को जॉब मिली, मशीन गेट द जॉब। आज से 13 साल पहले एक एडम नाम के रोबोट ने ही गेट द जॉब विच इज 100% बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। ही इज डूइंग द जॉब। सिमिलरली इन 2008 सिमिलर वेज एडम रोबोट बेस्ड ईव इज डेवलप्ड न्यू जनरेशन and utilized for the gene identification, pathogenesis of parasites, and one specific drug they have commonly developed, triclosan, as a common ingredient which is present in the toothpaste in drug-resistant malaria parasite by using gene technology in 2008. In 2020, so major part is a regulation, definitely. ये आपने जो ड्रग सर्च कर ली है, आज भी जो बच्चे QSAR पे काम करते हैं, इन सिल्को काम करते हैं, तो RDC में लोग बात कह देते हैं कि भाई वेट लैब कब करेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। सिर्फ QSAR से आपने ड्रग लीड आइडेंटिफाई कर ली तो ये 100% श्योर माना जाएगा। तो नाउ डेज अब उनको समझाना तो पता नहीं वो समझ पाएंगे कि नहीं। पूरी कॉक्सिब डेरिवेटिव आप एंटी इंफ्लामेटरी ले लीजिए, सेलिकॉप्सिब और ऐसी बहुत सारे QSAR बेस्ड ड्रग्स हैं जो मार्केट में चल रही हैं, मार्केटेड हैं, जो अब QSAR बेस्ड ड्रग हैं। अब ये उनको समझा पाना कि कंपनी बेस्ड, सो द सब स्ट्रॉन्गेस्ट रेगुलेशन FDA USA has given the approval for if you search the use the AI based platform for the drug discovery, that is you get the approval. This is the latest news on AI. Similarly, one more, मैं जैसा आपको बता रहा था, one drug is developed which is under the clinical trial, which is under the clinical trial, DSP-118. This is the first world drug which is developed by the platform of AI technology. It is under the phase first clinical trials, and it is used for the long-acting potent serotonin 5-HT1A receptor agonist. Obsessive compulsive disorder disease में it's a very useful. जब behavioral therapy आपको gene therapy करनी है, तब AI based is a benchmark for the therapy. So this is a one part of AI. AI is consists of so many things. There is a many things part of the AI. There is an inclusion of so many things. So one of the major part is a machine learning and deep learning. Machine learning is the application of artificial intelligence that provide system the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed. बिना किसी एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के मशीन आपसे लर्न करके आपका एग्जाम्पल क्रिएट कर देती है। मतलब आप 10 उसको MRI दिखाइए तो 11वीं MRI कैसी होगी वो खुद ही बता देगी। दिस इज अ मशीन लर्निंग। अ वेरी नाइस एग्जाम्पल, ये आप रोज यूज करते हैं, मैंने पहले भी बोला था अभी कि स्पैम में ऑटोमेटिकली कलर सेपरेशन करके आपके बॉक्स को आपकी यूज, हर आदमी का स्पैम अलग होगा, यू कैन चेक इट। आपकी हैबिट के बेस पे, आपके यूज के बेस पे, आपके बिहेवियर के बेस में मशीन आपसे लर्न करके आपका काम कर रही है। दिस इज अ मशीन लर्निंग। वन मोर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बच्चे जुड़े हैं और यदि समझना चाहते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल कॉमन एग्जाम्पल। आप कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक डेटा डालते हैं,
आप ग्राफ बनाना है तो एक्स एंड वाई एक्सेस में बनाया, और आपने एक्सेल में जो भी सिस्टम जैसा बार डायग्राम बनाना है, आपको लाइन डायग्राम बनाना है, वैसा प्रोग्राम में क्लिक किया और आउटपुट में वैसा आपको रिजल्ट मिल गया। दिस इज सिंपल ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस। आपने कुछ सर्च किया, वो वैसा आपको रिजल्ट मिल गया। ये एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉडल है जो आप रूटीन में यूज कर रहे हैं। ये अगर आप बात करें कि मैं जो बात कर रहा था कि एफएमआरआई है अल्जाइमर डिसीज की, और ऐसी 10 एक एमआरआई का डेटा आप देखेंगे तो टेराबाइट्स में होता है। ऐसी 10 और अनलिमिटेड अगर आप उसको देंगे ऐसी एमआरआई, तो वो आपको फ्यूचर एस्पेक्ट्स बता देगा कि कब किसको अल्जाइमर हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा द मशीन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बीइंग कि किस कंडीशन में आपको अल्जाइमर डिसीज हो सकती है। सो दिस, अब हमको एआई क्यों चाहिए, मशीन लर्निंग क्यों चाहिए? आप ये टर्म आजकल ह्यूज चल रहा है, बिग डेटा। बिग डेटा मींस अब ये जो आपको न्यूरल साइंस से, एमआरआई से जो न्यूरल डेटा मिला, उसको एनालाइज करना किसी ह्यूमन बीइंग्स के पास कंडीशन नहीं है। लेकिन आपको क्या रिजल्ट चाहिए है, ये डॉक्टर या जो उसका स्पेशलिस्ट है, जो साइंस का स्पेशलिस्ट है, उसको कैसा रिजल्ट चाहिए, कैसा आउटपुट चाहिए। यदि वो आउटपुट आपको कंफर्म करता है कि हमको इस फॉर्म में ऐसा आउटपुट चाहिए, तो मशीन में वैसा प्रोग्राम डिजाइन किया जा सकता है और वैसा प्रोग्राम में डेटा डाल से वैसा रिजल्ट लिया जा सकता है। हेलो, एनी प्रॉब्लम? हेलो, No problem, sir. Hello? You are audible. एनी इशू? No issue, sir. हेलो। So extremely large data sets, patterns, a particular trends and association, especially related to the human behavior or interaction. Although big data doesn't equate to any specific volume of data, कोई आप साइज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी if it is in terabytes means 1000 of GB, it's converted to TB. 1000 of TB become petabytes, and 1000 of petabytes become exabyte. Exabytes may be converted to gigabytes and yottabytes in the similarly on the way. So there is a no limit of volume of data. That data a human never can assess and analyze, and never they may reach the conclusion. So the machine you have to create as per your result, that machine, that learning behavior of a machine is known as machine learning. So what you want to that from? You are putting the data and what result you want using the program. आप कैसा चाहते हैं वैसा प्रोग्राम आपको डिजाइन करना है। आप क्या चाहते हैं? 3 + 2 = 5। आप यहां आउटपुट में 5 चाहते हैं या 15 चाहते हैं? So use that type of program. If you want to 3 × 5, then it's a 15, result is 15. If you want to 3 + 5, then the result is 8. So program is designed, that is a machine learning model, simple. So when program once decided, then you can test for your results. So once data and output is ready, then use the data and program, and then you get the output. आपको अब 10 तो MRI लगाई, प्रोग्राम रेडी है और आपको आउटपुट मिल जाएगा। आपको हजारों डेटा संख्या में सोशल मीडिया के बहुत सारे, कहाँ कोरोना कितना हुआ, कैसा हुआ, हमको सम चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा डेटा डाला, आउटपुट में आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा मिल जाएगा। सो दिस इज अ टेस्टिंग मॉडल ऑफ द मशीन। आपने खुद ही मशीन और प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम और डेटा से फिर आउटपुट क्रिएट कर लिया। दिस इज अ सिंपल machine learning. If you go for the drug discovery, machine learning meets the drug discovery part. So which type of data you want from the system, machine आपसे learn कर लेती है। आपने QSAR लगाया, आपके
प्रोटीन लाइब्रेरी है, प्रोटीन बैंक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बैंक है, वहां से कैसा एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली मशीन कैन डू इट. So research feature of extraction of method and data, implementation of feature extraction of method, creating, फिर अगेन आप कैसा चाहते हैं, आप 2+3 चाहते हैं, creating a testing, creating a training set, and when training set is ready to training the machine learning model and then test the model. आपको कैसा डेटा चाहिए था वैसा मॉडल क्रिएट करिए, और then you can check the you can evaluate accuracy or root mean square error, standard error, or mean accuracy percentage error. Which type of, if it is a good, then go yes. If no, go back immediately. So this whole learning for the drug discovery, data extraction by using machine, you can do it. The use of machine learning in early stage discovery has the potential for various uses, from initial screening of drug compound to the predict the success rate of on the biological factors. So if you want to use the molecule up to the market, the system is very nice. So I covered one more thing, last one, please. बहुत देर नहीं लूँगा, थोड़ा और समय और आपको लूँगा. So third, this is again different science, IoTs, Internet of Things. The Internet of Things आप सब यूज कर रहे हैं, आप सब AI यूज, मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप कितने कदम चल ले रहे हैं, आपके हेल्थ सिस्टम पूरा, आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपका टेम्परेचर कितना है, आपका जो भी आप उसके सॉफ्टवेयर में डाल देंगे वैसा जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए सब आपको बता रहे. हेल्थ मैनेजमेंट आपके मोबाइल पे अवेलेबल है. सिमिलरली आप 1 मिनट में फोटो यहां से वहां भेज देते हैं, 1 मिनट में प्रिंटर घर बैठे बैठे लगा देते हैं. आप आज की डेट में घर बैठे एसी चला देते हैं. बहुत सारे, आजकल मेरे घर में एक बल्ब लगाया बच्चे ने कि वो टाइम सेट की है कि सुबह 6 बजे बंद हो जाए, तो उसने 6 बजे ऑटोमेटिक, रात को 10 बजे ऑन होता है बाहर का बल्ब और 6 बजे बंद हो जाता है. घर आने के पहले एसी, घर बाहर से आते हैं कॉलेज से तो रास्ते से अपने मोबाइल से ऑन कर देते हैं एसी, घर पहुंचने के पहले एसी ठंडा कर देता है. सो हाउ इट इज हैपेंस. The Internet of Things, this is a system of integrated computing device, mechanical and digital machines, objects, animals, pupils that are provided with the unique identifier UIDs and ability to transfer data over a network without require human to human or human to computer interaction. कहीं कंप्यूटर नहीं चाहिए, कहीं कोई चीज नहीं चाहिए, आपको अपना ब्लूटूथ खोलना है, दूसरे के ब्लूटूथ में ट्रांसफर कर देना है, वहां कोई और चीज नहीं चाहिए, कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए, एक यूआईडी चाहिए, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, और आप उसका रियल टाइम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं. आप जब चाहें तो ऑन कर सकते हैं, जब चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, या पता कर सकते हैं कि मेरी मशीन चल रही है या बंद है. सो दीज आर द IoTs एंड वेरी यूजफुल इन अ ड्रग इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग. This is the whole process of industry. I think जो ट्रेनिंग करके आए हैं स्टूडेंट वो अवेयर होंगे, टीचर्स तो जानते ही हैं, उन्होंने पढ़ाया होगा. ये एक सिंपल एक रूट है इंडस्ट्री का, और ये रूट में बहुत सारी मशीनरी चाहिए है, बहुत सारे रियल टाइम उनके वैलिडेशन चाहिए हैं, रियल टाइम उनका मेंटेनेंस चाहिए है, और इसके लिए बहुत सारे वर्कर, नॉट ओनली द वर्कर, द ट्रेंड वर्कर और नॉलेजफुल माइंड, केमिकल इंजीनियर चाहिए हैं, फार्मासिस्ट चाहिए हैं, सम स्पेशल इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक इंजीनियर चाहिए, और बहुत सारे लोग चाहिए होंगे. सो टू रन दिस होल टाइम वर्ल्ड, बिकॉज आप जिस जिंदगी में जी रहे हैं, इंडस्ट्री को पास टाइम नहीं है. कोरोना हुआ, कोरोना की दवाई अर्लीस्ट देनी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिक रही है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दूसरी कंपनी ना दे दे उसके पहले हमको प्रोडक्शन दे देना है. सो कंपटीशन इतना तगड़ा है, टाइम नहीं है उस कंपटीशन में, एंड उसके साथ भी आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपकी मशीनरी का मेंटेनेंस कम कर रखना है, आपको कम से कम अपनी कॉस्ट लगानी है. तो ये सब पर्पस के लिए आपको स्मार्ट
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरी इंडस्ट्री का चाहिए। सो बी फार्म के बच्चों को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या प्रोसेस होती है इंडस्ट्री में। आप पासिंग आउट बैच हैं, स्कूल है आपके लिए ये कि होल फिनिशिंग स्कूल आप समझिएगा कि जब भी ड्रग या मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पहले उससे एक रॉ मटेरियल स्टोर होता है, उस रॉ मटेरियल स्टोर में पहले वहां आके रखी जाती है मशीन, सामान रखा जाता है, और वो सामान जब उस स्टोर में आ जाता है, उस स्टोर में रखने के बाद रॉ प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग की जाती है। जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा वहां ग्रीन और येलो करके लेबल लगाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मशीन भी कर सकती है। जैसे ही आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्ट चेक हो गया, रॉ मटेरियल की वेइंग एज पर द प्रोडक्शन एरिया, कितना आपको वेट चाहिए है, आपको 100 किलो की बोरी किस मटेरियल की चाहिए, 200 किलो की मटेरियल किसकी चाहिए, या आपको ग्राम्स में चाहिए है, वो आपकी वेइंग करना है। वेइंग मशीन भी ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, ऑटोमेटिक एआई बेस्ड होनी चाहिए, या आईओटी बेस्ड, जिसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, या आप उसको अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। देन रॉ मटेरियल लोडेड टू द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर में लोड कर दिए, जहां पहुंचानी है वहां पहुंच जाएगी, और जहां डिस्पेंस होनी है वो उस मैन्युफैक्चरिंग एरिया में मटेरियल पहुंच जाएगा। रॉ मटेरियल्स आर डिस्पेंस विद द एक्यूरेसी फॉर द फार्मूला मैन्युफैक्चरिंग। आपको अलग अलग वे करने की जरूरत नहीं है, आदमी के हिसाब से वेइंग एरर नहीं करनी है, क्योंकि आपको 100% एक्यूरेसी के साथ ड्रग डिस्पेंस करनी है। सो मशीन्स विद द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप बैठे बैठे ऑफिस के अंदर से ही चेक कर सकते हैं कि वहां सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे मुखर्जी सर वहां अपने घर से और मैं अपने घर से दे रहा हूँ, ऐसी आईओटीज में भी आप कर सकते थे कि रियल टाइम कहीं से और बैठ के आप ये पता कर सकते थे कि उस समय वहां डेटा क्या चल रहा है। देन सिमिलरली बच्चों को बता दें फिर से एक बार, मटेरियल आता है, स्टोर में जाता है, स्टोर में रॉ प्रोडक्ट चेक होता है, फिर वहाँ प्रोडक्शन एरिया में कितना किस क्वांटिटी में वेइंग होती है, फिर मशीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट, फिर डिस्पेंसिंग की जाती है, डिस्पेंसिंग मतलब वेइंग एज पर द फॉर्मूला, और फिर उसका एक फॉर्मुलेशन प्रोसेस, आपको सिरप बनाना है तो टैंक में जाएगा, टैबलेट बनानी है तो टैबलेट प्रोसेस स्टेप में जाएगा, और वहाँ फॉर्मुलेशन जिस टाइप की फॉर्मुलेशन, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप जो बनाना है वो बनाने के लिए सारी जो मशीन यूज होती है वो ऑटोमेशन है, उनका ऑटोमेटिक मशीन है, रियल टाइम उनमें रीडिंग आ रही है कि कितने लीटर बन गया है, कितने और लोग टैबलेट बन गई हैं और उनकी क्या एक्यूरेसी है। देन गो फॉर द वैलिडेशन। अब टैबलेट की लगातार आपको वेइंग करके चेक करना है कि वेट वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेट वेरिएशन हो रहा है तो फ्रेबिलिटी की क्या कैसा है, हार्डनेस कैसी है, पर रेजोल्यूशन तो नहीं कर सकते, बट हार्डनेस, फ्रेबिलिटी और वेट वेरिएशन एट ए टाइम मशीन बताती हैं आज की डेट में, और आपको कहीं मशीन और शिफ्ट करने की जरूरत नहीं। सेम मशीन कैन गिव दीज डेटा, कि आपको अब वो जमाना नहीं कि आपको 20 टैबलेट लेनी है, फिर वो वेट वेरिएशन करेगा, 6-10 टैबलेट की आपको हार्डनेस निकालनी है, आपको 20 टैबलेट की फ्रेबिलिटी टेस्टिंग करके वो एरर निकालना है। एवरीथिंग इज ओके, और आप ये मशीन को घर बैठे चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। साथ में ये मशीन कब खराब होने वाली है आपको ये इंफॉर्मेशन भी चिप के थ्रू मिल जाती है। सो मेंटेनेंस और मटेरियल शॉर्टेज भी, आप अगर आप सब यहाँ तक पहुंचेंगे तो रॉ मटेरियल से यहाँ तक है, स्टोर में कितना रॉ मटेरियल है, कितना बचा है, कितना आगे की डिमांड क्या है, ये सब चार्ट इमीडिएटली क्रिएट कर सकते हैं। देन गो फॉर द पैकेजिंग एंड लेबलिंग, डिजाइन द प्रॉपर लेबल। लेबल कैन बी, आज की डेट में आप कोड वार्ड, आप क्यूआर कोड वाले लगाते हैं, आप क्यूआर कोड भी एक एआई बेस्ड रिजल्ट है। जब आप किसी मशीन को देते हैं और अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं, वो सब कुछ डिटेल आ जाता है। तो आपको ऐसे पैकेजिंग स्लिप बनानी है जो करना है, सो दिस कैन बिकम इजी। ड्रग्स आर स्टोर्ड फॉर शिपिंग, और आप उसको एंड एंड क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डिस्पेंस, सो दिस इज अ होल इंडस्ट्री पाथवे। एंड और ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, अंडर ग्रेजुएट बच्चों ने पढ़ा होगा फाइनल मैन्युफैक्चरिंग वाले सब्जेक्ट में। सो फाइनल कंक्लूजन, सॉरी रिजल्ट्स ये हैं, connected to appliances, a smart home security system, auto and farming equipment, wearable health monitors, smart factory equipment, biometric, cyber security scanners, shipping containers and logistics, all based on the IoTs. These are the uses जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया, particularly identifying machines that need the maintenance ahead of breakdowns means that stoppages are avoided. Maintenance can be scheduled for
क्विक एट टाइम्स, जल्दी से जल्दी आप उसको ठीक कर सकते हैं, मशीन बंद ना हो जाए इसके लिए आपको पहले से वार्न करेगी मशीन, आपको अलार्म करेगी मशीन। तो ये सब सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं। सो डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल बेस्ड ऑन द इन्वेंट्री क्वांटिटी एंड क्वालिटी, raw material optimization by real time monitoring to reduce damage, wastage and pilferages, digital twin of manufacturing equipment monitoring, predictive maintenance of plant equipment, real time centralized monitoring for batch processing and continuous manufacturing, monitoring and controlling drug manufacturing environment ambient conditions. So these are the various and huge application, diverse application of IoTs. So finally, AI will not replace the chemist, but the chemist that uses AI will replace the chemists that don't. Thank you for listening and bearing me. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable information regarding artificial intelligence. स्टूडेंट सर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग से शेयर किया हुआ है और बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ड्रग की डिस्कवरी में और ड्रग की डेवलपमेंट में, फार्मास्यूटिकल में उसका क्या रोल होगा और कैसे ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इसमें आने वाले डेज में जो कि मोड इसका बढ़ेगा। जैसे कि आपने कोविड के सेशन में देखा कि ऑनलाइन क्लासेस मोड को आपने अडॉप्ट किया और अब काफ़ी वर्ल्ड वाइड इसको अडॉप्टिंग हो रही है। उधर फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी इसकी काफ़ी अडेप्टेबिलिटी आएगी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारी ड्रग डिस्कवरी में इम्प्रूवमेंट देगा। और नो डाउट अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम फार्मास्यूटिकल में काफ़ी यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में हम काफ़ी सारी डिसीज़ को जो कि होने वाली होगी उसको प्री वार्न करके हम काफ़ी सारी लाइफ्स को बचा सकेंगे, स्पेशली इन कैंसर, ब्रेन और अदर डिसीज़ में जो कि क्रिटिकल डिसीजेज हैं उस पर हमारी काफ़ी कंट्रोलिंग होगी और हम पेशेंट को वार्न करके एक अच्छी लाइफ स्टाइल उसको दे सकते हैं। सो नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल पार्टिसिपेंट फॉर इफ एनी हैविंग क्वेश्चन देन प्लीज आस्क। ऑल पार्टिसिपेंट एनी क्वेरीज कैन आस्क टू सर। सातवें Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, just I want to one question. How this artificial intelligence and machine learning that will be helping to find out the COVID-19 treatment? Okay. There is a one very important part of AI, AR. AR means आपको दो चीज बताना रह गया था, AR and VR. AR means augmented reality, means वर्चुअल को रियल लाइफ के साथ जोड़ के उसको काम करना। तो वर्चुअल मशीन के थ्रू रियल इमेजेस को मर्ज करके आपके जितने स्कैन हुए इमेजेस, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के जितने आपको स्कैन किए गए पैट स्कैन या आप जो मशीन से करते हैं, एट ए टाइम फास्ट रिकवरी डेटा के साथ आपको तुरंत ब्लॉकेज बताती थी मशीन, नंबर 1। नंबर 2, पेंडेमिक में दूसरा जो काम करती थी, जो आपके ड्रोन थे, उस कैमरा से कौन सा इन्फेक्टेड है, कहाँ पॉपुलेशन इन्फेक्टेड लोगों की, वो ड्रोन से पहले से अवेयर करने के लिए काम करता था। सो दिस AR इज अ वेरी यूजफुल, AR ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब आप वर्चुअल, जैसे वर्चुअल आप कभी कोई मॉल या उसमें आजकल मशीन लगाते हैं, एक चश्मा पहना देते हैं और आपको एक गेम खिलवाते हैं, आप एक रियल से हट के वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। लेकिन उस वर्चुअल वर्ल्ड को साथ में रियल से भी जोड़ें, देन नोन एज ऑगमेंटेड रियलिटी, एंड दैट इज वेरी यूजफुल फॉर द इमेज रिकॉग्निशन बेस्ड डायग्नोस्टिक्स में यूज किया गया था। One minute.
हेलो अरविंद, हाँ सर। अभी सर के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो पूछवा लो, जी सर। या कुछ बच्चों के चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको ले लो। मैं देखता हूँ सर। Anyone from audience want to ask any question? Please ask. You can write your question in chat box also. Dr. Pushpin, I'm audible? Dr. Pushpin? हेलो, देखता हूँ है कि अरविंद, हाँ सर। डॉक्टर पुष्पन अभी ज्वाइन किए हुए? नहीं सर, अभी नहीं है इस समय। उन्होंने नहीं सर, उनका लिस्ट में नाम नहीं है इस समय। रिमूव होगा क्या? ठीक है सर, इसको बंद करते हैं। नहीं, बंद मत करो, फोन से अच्छा, बात करो उनसे। अच्छा। वो जुड़ रहे हो या कुछ बात कर रहे हो, 1 मिनट बोल के रुके ना, वो वीडियो लगता ना आ रहा हो। उनका नाम नहीं है। मोबाइल से फोन हुआ। हेलो 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 आप सर हेलो, ऑडिबल है? यस सर, हाँ सर, ऑडिबल है। यस सर, ऑडिबल है। ठीक है। ओके, ऑडियंस किसी कोई क्वेश्चन है तो जरा पूछ लीजिए सर, आगे। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बाहर हो गए थे हम। नो इशू सर। एम फॉर्म, बी फॉर्म स्टूडेंट, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सबसे। Hello, sir. बोलिए। हेलो Sir, I have one question. First of all, thanks for this seminar, Artificial Intelligence. Sir, I have question. ऐसे सर ने बोला कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को इन फ्यूचर अल्जाइमर डिजीज या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है तो वी कैन डायग्नोज विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So, sir, can you little bit elaborate this? How can we can diagnose? अगर किसी को फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होनी है तो उसे कैसे मतलब डिटेक्ट डायग्नोज कर पाएंगे? ओके, थैंक यू। जब आप मशीन एमआरआई कराती हैं, यस सर। तो एमआरआई मतलब डायरेक्ट मशीन नहीं बताएगी। एमआरआई जैसे ही आप कराएंगी तो उस एमआरआई की रिपोर्ट्स में ही आपको विदाउट आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी फिजिशियन की या पैथोलॉजिस्ट की, उस एमआरआई में ऑटोमेटिकली मशीन ही आपको डायग्नोज करके बता देगी कि आपको अल्जाइमर है या नहीं। वो रियल टाइम बेस्ड उसके पास जो डेटा है पहले से, अल्जाइमर डिसीज डेटा मशीन पहले से लर्न जानती है कि किस टाइप का ब्रेन एमआरआई होगा तो अल्जाइमर हो सकता है। सो वो प्रेडिक्ट कर सकती है कि अभी आपके में क्या क्या चेंजेस हैं, आपकी एमआरआई में कौन सा जीनोमेटिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा प्रोटीन एक्स्ट्रा डिफॉर्मेट हो रहा है, तो इन फ्यूचर उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। वो डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसमें आपको डायग्नोस करके बता सकता है। सो दिस इज बेस्ड ऑन विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड सॉफ्टवेयर। मशीन फॉर द एल्जाइमर डेफिनेटली एमआरआई की जरूरत होगी, बट दैट शुड बी द स्मार्ट एंड एक्यूट विद द एआई। सर करंट में सर ये सुविधा उपलब्ध है कि मतलब अगर इफ अ पर्सन इज सफरिंग इन फ्यूचर ही सफर्ड विद will be suffered with Alzheimer or any other type of disorder like any cancer, whatever, sir. Sir, is it 100% possible that with the help of this artificial intelligence we can diagnose such type of problem? So Possibility. in 2013
one of the South Korea developed one software with the PET scan for the identification and diagnosis of breast and lung cancer, and they are practically nowadays using for the not only for the diagnosis, even for the surgery. More than 7 lakh surgery with the help of AI robotics they have done. Exactly, sir. Because the problem which you're saying that breast cancer and one another, इनके पीछे साथ जो रिसर्च हुई है उसमें जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए और जो दूसरा प्रॉब्लम है उसके लिए जीन का पता लगाया जा चुका है कि दिस इज अ जीन रिस्पांसिबल फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो अभी तक सर उनको ही क्योर करा गया है, उनको ही क्योर करने की मतलब गारंटी है वी कैन क्योर दिस बाय दिस प्रोसेस. सर दूसरी वन मोर थिंग, देखिए मशीन दो टाइप के जो मशीन लर्निंग एआई है आपको बता दें, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड आउटकम दोनों में काम कर रही है. तो डेटा अनप्रिडिक्टेबल है, देन डीप लर्निंग कहते हैं उसको. डीप लर्निंग में दो टाइप का डेटा है, जो सब टाइप का जो अनसुपरवाइज डेटा है जो पहले नहीं था. सो अब मशीन इतनी स्मार्ट है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पता हो कि ये जीन है, यदि कोई उसको जीन ऐसा दिखता है जो उसको पहले नहीं दिखा था, समझ रही हैं, वो प्रोटीन सीक्वेंस अब नहीं दिख रही है, अब जो पहले दिखती थी वो कुछ डिफरेंट दिख रही है, तो वो उसको भी सॉर्ट आउट करके एक उसका क्लस्टर बना के एक डोमेन सेपरेट देता है कि उसको फर्दर आइडेंटिफिकेशन किया जाए. सो द मशीन इज अ वेरी स्मार्ट. सो दिस नॉट कि ओनली द जो सर्च कर दिए गए हैं उसी बेस पे चलता रहेगा, तो उस बेस पे तो आपके मशीन मॉडल क्रिएट हो ही जाते हैं. बट इन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कस्टमाइज नया पेशेंट गया है, नई बात हो रही है. आप, मैं वही बात कर रहा था, जैसे आप जो भी हर आदमी का ईमेल देखिए अलग तरीके से काम करता है, अब आपका चैट बॉक्स अलग तरीके से काम करता है, आपको बिहेवियर समझता है. तो मशीन उस पर्टिकुलर आदमी की जब एमआरआई होगी तो अब वो पर्टिकुलर डेफिनेटली उसके जो डिफरेंट इश्यूज होंगे वो उसको उसके भी क्लस्टर फॉर्म में डिफरेंट रिजल्ट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है. थैंक यू सर. Sir, one of our student, Soumya Upadhyay, has a question in chat box. She is asking that can we use artificial intelligence in determining which route to use of administration of drug that might be more effective for a particular disease? Can AI predict efficacy of a drug also? हाँ, सिमिलरली मैं बात हुई थी जो बायोलॉजिकल टारगेट्स की. बायोलॉजिकल टारगेट्स मतलब रिसेप्टर पे कितनी ड्रग जाएगी और वो ड्रग जाएगी वहाँ बाइंड हो रही है कि नहीं, ये तो बहुत ही आसान सा बात है. सो बिल्कुल आज की डेट में तो आपके जितने साइमुलेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी आप कर सकते हैं, और simulation of human intelligence is a AI. So machine simulation is already working, और उस मशीन से AI डेफिनेटली यदि अटैच होगी तो ये बताना डेफिनेटली अच्छा होगा. और इसके लिए एक डीप माइंड सॉफ्टवेयर है जो वो बताने में आप डीप टॉक्सिटी के लिए और डीप माइंड करके आता है. गूगल ने एक नया NHS लंदन के साथ वहाँ की डिस्कवरी करके साथ करके करीब 1 लाख ऐसे केसेस जो जीनोम बेस्ड थे और कहाँ टारगेट करेगा उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काम कर रहे हैं. सो गूगल का एक सॉफ्टवेयर डीप माइंड और NHS रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ये दोनों मिलके ऐसा एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं. थैंक यू. गुड.